Good evening, students. In the previous video, I have already discussed the summary of the chapter 1. So now I am going to discuss the chapter 2 summary of the chapter 2 of the novel. Now, in the chapter 2 of the novel Wuthering Heights by Emily Bronte, it has been described that in spite of the cool reception, why I am telling cool reception, because लॉकवुड वहाँ पे आए ये कोई पसंद नहीं कर रहा था, फिर भी लॉकवुड अगेन पेज अनदर विजिट, फिर से दोबारा उस घर में गए भी है इन द फॉलोइंग आफ्टरनून. इन चैप्टर 1 that was the first day he went to the house. The next afternoon visit is in the chapter 2. Working the 4 miles through mud and heath, he arrives just as it begins to snow. After much knocking at the door, a young man without a coat and shouldering a pitchfork arrives on the scene and leads him inside, where a huge fire burns cheerfully. The table is lit for an evening meal. Whatever we are reading here is actually portraying the Western culture. As we know, it's a cold climatic country. So they actually have heater in their own room. So during winter season, a fire was actually in flame, because the time Lockwood arrived there, that time there was about to happen a family dinner. So everybody was getting ready. The fire flame was there. It was a cozy, warm environment inside the room. So, जिसने दरवाज़ा खोला उन्होंने लॉकवुड को अंदर तक लेके गया, और जिन्होंने दरवाज़ा खोला लॉकवुड के लिए, his appearance was not very impressive. एक हो सकता है कि लॉकवुड को देख के the person became again irritated, क्योंकि कोई पसंद ही नहीं कर रहा है कि वो वहाँ पे जाए, या नहीं तो they were just in their own private space, so they didn't had that makeup for outsider. Lockwood tries to converse with a young lady who he assumes is Heathcliff's wife. लॉकवुड ने सोचा था वहाँ पे जो औरत थी, जो लड़की थी, वो हेथक्लिफ का वाइफ है, बट एक्चुअली नॉट. वो बिना सोचे समझे खुद से एज्यूम कर लिया कि द लेडी माइट बी द वाइफ ऑफ हेथक्लिफ. शी हैज़ एन एक्सक्विजाइट फेस, मतलब शी इज़ ब्यूटिफुल, गोल्डन कर्ल्स एंड ब्यूटिफुल आइज. But all this is marred by a scornful and disagreeable expression. Now this woman, whatever I say, is also given like क्यों आप आए हो, ऐसा वाला एक expression दिए है, because already I said several times that Lockwood was actually not acceptable in that family. She is extremely rude to Lockwood. Hence, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, कभी कभी हम ना चाहते हुए भी उनके संग बहुत रूडली बिहेव करते हैं. तो द सेम थिंग हैपन्स विद दैट लेडी ऑल्सो. द यंग मैन हैज़ फ्री एंड हॉटी बियरिंग डिस्पाइट एन अनकेम्ड अपीयरेंस ऑफ अ कॉमन लेबरर. और लॉकवुड का भी अपीयरेंस एकदम मतलब और डिस्गस्टिंग था, इरिटेटिंग था, तो देख के और भी इरिटेटेड हो जाते थे लोग. Lockwood, Heathcliff too is not enamored at seeing Lockwood, and savagely orders the girl
to make tea. अच्छा तो नहीं लग रहा है बोलने में, पर फिर भी सोचे कि ठीक है, बाहर से कोई आए हैं मेहमान, थोड़ा चाय पिला देते हैं. तो नॉट फीलिंग हैप्पी टू मेक द टी, बट फिर भी जस्ट प्रोफेशनली थोड़ा सा करना पड़ता है, तो ऐसे करके चाय बनाने के लिए बोल दिया. सिंस नो वन बॉदर्स टू इंट्रोड्यूस हिम टू एनी वन, it is only after a series of awkward blunder. Obviously it will be very awkward if someone doesn't want you and you start making yourself start giving your own introduction, पर कोई सुनना नहीं चाहते, कोई जानना नहीं चाहते, तुम खुद से ही बोलने लगे हो, तो automatically people will get more irritated. That Lockwood learns that the girl is the widow of Heathcliff's son. जिसे वो हेथक्लिफ का बीबी सोचे थे, वो एक्चुअली हेथक्लिफ का बहू है. And that the sullen young man is called Harrington Earnshaw. Even after supper, supper means dinner. In Britain, it is not, they doesn't speak dinner, they actually say it supper. He is treated with extremely incivility and rudely ignored. कि ठीक है, हम तुम्हें अच्छे से समझा रहे थे कि यू आर नॉट एक्सेप्टेबल, तुमने सुना नहीं, नेक्स्ट आफ्टरनून फिर से घर में आ गए हो. नाउ वी आर फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड दैट वी डोंट वांट यू हियर, वी आर एक्चुअली बिहेविंग रूडली विथ यू. अ क्वेरल ब्रेक्स आउट बिटवीन जोसेफ एंड कैथरीन, ड्यूरिंग विच शी ट्राइज टू फ्राइटन हिम विथ थ्रेट्स ऑफ ब्लैक मैजिक. कैथरीन जोसेफ को ब्लैक मैजिक का डर दिखा रहा था. Lockwood realizes that night and snow have come on during his visit, and he asks to be guided back to Thrushcross Grange. जहाँ पे लॉकवुड रुके थे वहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि तब तक लॉकवुड को समझ में आ गया था, एक तो ठंड का समय है वहाँ पे, और विंटर सीजन में रात जल्दी होते हैं, उसके ऊपर बर्फ़ गिर रहा है, तो ही एक्चुअली किसी को मदद मांगे है कि मेरे को थ्रशक्रॉस ग्रंज तक पहुंचा दीजिए. हिज रिक्वेस्ट इज़ रिफ्यूज्ड. कोई उसे पसंद ही नहीं करते हैं, तो उनका रिक्वेस्ट भी क्यों रखे. सो सीजिंग अ लैंटर्न, खुद से ही वो एक लैंटर्न लेके खुद से ही चलने लगे. Joseph sets the dogs on him and he is dragged down to the amusement of Hareton and Heathcliff. और जोसेफ उसके पीछे, घर का, मैं उस दिन बोली थी एक डॉगी था उन लोगों का, उसको भगाया उनके पीछे. Jilla, the housekeeper, rescues him and takes the dizzy Lockwood into the kitchen. तब तक Lockwood almost in a position to, मतलब डर के मारे हो या बहुत थक गए होंगे, मैंने बीइंग चेस्ड बाय अ डॉग, तो हालत ख़राब होने लगे थे. तो जो इन लोगों का जो हाउस कीपर था, मतलब एक्चुअली गार्ड और सर्वेंट वॉट एवर वी से, जिल्ला उनका नाम था, उन्होंने लॉकवुड को बचाया और किचन में ले गया. लॉकवुड इज़ लेफ्ट विथ नो चॉइस बट टू स्पेंड द नाइट एट द हाइट्स. और कोई ऑप्शन नहीं है, वो निकल भी नहीं पा रहे, बाहर बारिश, बर्फ़, रात हो गया, उसके ऊपर ये डॉग उसको चेस करके इसका तबीयत भी ख़राब हो गया, ये थोड़ा बहुत डरते भी हैं, तो सारे चीज़ लेके एंग्जाइटी भी हो रहा है लॉकवुड का तब तक. तो अल्टीमेटली उसके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो ही स्टेड बैक एट हाइट्स दैट नाइट. नाउ द क्रिटिकल कमेंट्स. Critical commencement, we need to discuss on these points. In this chapter, we are introduced to some other major character. However, we are puzzled by the inmates of the heights. मतलब थोड़ा सा कौन किसका क्या रिश्ता है, ये थोड़ा समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग अभी तक लग रहा है. धीरे धीरे नॉवेल हम पढ़ते जाएंगे तो इतना कंफ्यूजन नहीं रहेगा. There is an undercurrent of animosity between them. सबके बीच में थोड़ा सा कोल्ड रिलेशन है. एंड once again the episode of the dog emphasizes the streak of violence which is constantly felt at the heights.
Chapter 1 में भी we came across the incident with dog. Chapter 2 में भी dog is playing a very important role here. A sense of mystery and suspense is introduced in this chapter. A sense of mystery and suspense is introduced in this chapter with the reference to such words as magically, beneficent fairy, little witch, ghost, and by Catherine's assertion of her abilities in the black art. Just now I said कि black magic का डर दिखा रहा था, उसे वो एक्चुअली ब्लैक मैजिक का बात नेगेटिवली बोल के ही वॉन्टेड टू थ्रेट, ठीक है, मैंने शी एक्चुअली पुट द अदर पर्सन इन फियर. द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वेदरिंग हाइट्स एंड थ्रैशक्रॉस ग्रंज इज ऑल्सो एस्टैब्लिश. तो हमें समझ में आया वेदरिंग हाइट्स इज अ बिल्डिंग, थ्रैशक्रॉस ग्रंज इज ऑल्सो अ बिल्डिंग जहाँ पे लॉकवुड रुका था. तो दोनों बिल्डिंग के बीच में काफ़ी डिस्टेंस भी है. वेदरिंग हाइट्स इज फुल ऑफ लाइफ एंड वार्मथ विथ इट्स इमेंस फायर, टेबल लेट फॉर अ प्लेंटिफुल इवनिंग मील, जो हम डिनर बताते हैं यहाँ पे, वो आप उन लोग सपर बोलते हैं. बट इट्स इनहेबिटेंट्स आर स्ट्रेंज. थ्रैशक्रॉस ग्रंज इज कोल्ड, लोनली एंड रेजिस्टेंस टू चेंज. मतलब वहाँ पे सिर्फ लॉकवुड रहते हैं, सुनसान, एकदम उतना लोग उस बिल्डिंग में रहते नहीं. अगर लॉकवुड उस रात को पहुंचते तो सिर्फ लॉकवुड ही होते वहाँ पे. दिस चैप्टर एंड्स ऑन अ नोट ऑफ सस्पेंस विथ लॉकवुड हैविंग टू स्टे बैक एट द हाइट्स. वो रात को वहाँ पे रुक गया, वेर ही हैज सो रूडली बीन रिसीव्ड एंड अटैक ट्वाइस बाय द डॉग. डॉग 2 बार उसे अटैक किया, बाकी लोग तो उसे पसंद ही नहीं कर रहे, फिर भी बेचारा को रुकना पड़ा उस रात के लिए हाइट्स में, वेदरिंग हाइट्स में. ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर 3 समराइजेशन. थैंक यू. प्लीज़ डू सब्सक्राइब. आई एम कॉन्स्टेंटली अपलोडिंग वीडियोज़, येट आई एम नॉट गेटिंग दैट मच. मैंने व्यूअर, यू पीपल आर एक्चुअली वॉचिंग, बट यू पीपल आर not subscribing it. Please, it's a request, please do subscribe so that I can feel more motivated to upload videos. Thank you.